Hello students. So yesterday we had seen in our last lecture about forces as well as what are the differences between balanced force and unbalanced force. So today we are going to see and we are going to start Newton's laws of motion. In that we will be studying about Newton's first law of motion. But students, before we study Newton's first law of motion, let us focus upon a simple activity which was performed by Galileo. This activity, which I'll be explaining to you, became the base for Newton for the formulation of his laws of motion. So this is very interesting and we should understand what the activity was that was performed by Galileo. Okay, so in his activity, so this activity was done by Galileo. I will explain you. Students, इसमें उन्होंने क्या किया, गैलीलियो ने दो इंक्लाइंड प्लेन्स लिए. ओके, इंक्लाइंड प्लेन्स क्या है? एक ऐसा वुडन प्लैंक लगाया है और उसको किसी सपोर्ट से कोई पर्टिकुलर एंगल पर रख दिया गया है. ये जो एंगल है जिसपे ये प्लैंक ऐसे इंक्लाइंड है, ये कहलाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. ओके, सिमिलरली दिस इज योर first inclined plane and this is your second inclined plane. These two inclined planes were put adjacent to each other. Okay, now what happened was he took a marble. Okay, marble आप लोगों को पता है, गोटी. इसको उसने यहां से इस inclined plane नंबर फर्स्ट से उसने ड्रॉप किया. Okay, he did not pushed it, he just dropped it. Okay, this you have to remember. So जैसे जैसे ये मार्बल नीचे आने लगा और बेस तक पहुंचने लगा, ग्राउंड के बेस तक, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगी. ये आपको पता है, जब हम कोई भी पर्टिकुलर बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज. दिस वी आर गोइंग टू रीड ऑल्सो इन आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ग्रेविटेशन. सो नाउ व्हाट ही डिड वाज, व्हेन द मार्बल वाज अलाउड टू मूव डाउन along with the plane, the velocity of the marble was increasing, and when it came down, since there was another plane which was kept adjacent to this inclined plane number 1, so the ball started climbing up in this plane. So what he found was very interesting. He found that when the friction is supposed to be negligible, although in practical situation friction हमेशा रहता है. फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? दो लेयर्स के बीच में, जब आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, दो सरफेस के बीच में जब सरफेस की लेयर्स जो है एक दूसरे को अपोज करती है, जिसके कारण एक अपोजिंग फोर्स लगता है, ये अपोजिंग फोर्स हमेशा मूवमेंट को रेजिस्ट करता है. फ्रिक्शन इटसेल्फ मींस रेजिस्टेंस टू something, that is the motion in this case. So friction is supposed to be zero. So how he achieved that zero friction? उसने बहुत स्मूथ ग्लास जो प्लैंक है उसको ग्लास का लिया, उस पे भी अगर हम ऑयल की लेयर डाल दें तो फ्रिक्शन ऑलमोस्ट बहुत कम हम कर सकते हैं. तो जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होता है उतना ही कम फ्रिक्शन होता है. So what he found was that when there was no friction at all, the ball was able to climb up to the same height. Understood? यानी अगर इसकी हाइट h है और h हाइट से ये मार्बल को हमने ड्रॉप किया, तो इस हाइट पे कहां तक पहुंचेगी? यस, इसकी हाइट भी h तक ये बॉल पहुंच जाती है. This ball will climb up to what height? This ball will climb up to the height which was its initial height. Now you will say, what happened when the angle is changed? Here in this case we have taken the angle to be same. तो यही गैलीलियो ने एक इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस लिया. जैसे जैसे उसने क्या किया, ये एंगल को हम एडजस्ट कर सकते हैं ना किसी स्क्रू से. दिस एंगल कैन बी एडजस्टेड. So what happened? He started decreasing the angle. So now he started decreasing the angle means what? Now the slope will not be this one,
बट द स्लोप इज डिक्रीज्ड। अब उसने जो नया स्लोप लिया दैट वाज दिस, उसके बाद में अगला स्लोप लिया, अगेन चेंज्ड। सो ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग फ्यू ऑब्जर्वेशंस। अब वो क्या ऑब्जर्वेशंस थी आप ध्यान से देखना। ओके, सो ये जब एंगल उसने चेंज किया, अभी तो ये हाइट कितनी है बच्चों, ये हाइट है h, ओके, और ये एंगल कितना था, थीटा। अब इसने ये थीटा इस एंगल को कम कर दिया। तो जब उसने ये एंगल कम किया तो उसने ये देखा कि द डिस्टेंस अप टू विच द बॉल वॉज मूविंग इज इंक्रीज नाउ। अर्लियर द बॉल वॉज गोइंग एंड रीचिंग अप टू विच प्लेस, मार्बल जो थी वो कहां तक जा रही थी, मार्बल यहां तक पहुंच रही थी। ओके, द मार्बल बॉल वॉज एबल टू रीच अप टू दिस प्लेस। ये बात आपको समझ आ रही है, एट हाइट h। लेकिन जब ये एंगल थीटा को उसने डिक्रीज किया तो ये देखा कि ये जो डिस्टेंस है ये अब वो ज्यादा दूर तक जा पा रहा था, यानी मार्बल की हाइट में कोई फर्क नहीं आया, पर ये जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज हो गई। सिमिलरली जब इस एंगल को और कम किया तो ये और आगे तक जा सकता था। समझ आ रहा है? तो उसने ये देखा कि हर बार एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को मैं जरूर कम कर दे रहा हूं, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इसको मैं कम कर रहा हूं तो ये और आगे तक जाएगा, जब तक जाएगा जब तक कि इसकी हाइट कहां तक नहीं पहुंच जाए, h तक नहीं पहुंच जाए। तो हाइट सेम रख रहा है पर डिस्टेंस अब ज्यादा ट्रेवल कर पा रहा है। अगर और कम कर दिया तो अब ये और आगे तक जाएगा। इस तरीके से अगर बिल्कुल जीरो कर दिया जाए, बिल्कुल जीरो कर दिया जाए तब क्या होगा, तब ये बॉल इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक कि इस बॉल को सेम हाइट ना मिल जाए। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी अनबैलेंस्ड फोर्स, यही हमने कल देखा था, यहां पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं है। यही कारण है कि ये बॉल अपनी सेम हाइट तक पहुंच जाता है, यहां पहुंचने के बाद फिर वापस आएगा सेम हाइट तक, ये ऑसिलेट करता रहेगा। पर अगर हमने इसके प्लेन्स की इंक्लिनेशन को कम करते गए तो ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि सेम हाइट पे नहीं पहुंच जाए। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी के मोशन को इन्फ्लुएंस करना है, उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना हो तो हमें अनबैलेंस फोर्सेस की जरूरत होती है। नेचुरली कहां अनबैलेंस फोर्सेस मिलते हैं हमको, ऑल द फ्रिक्शन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, ये अनबैलेंस फोर्सेस की तरह एक्ट करते हैं। यही कारण है कि इन एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस ये बॉल सेम हाइट तक नहीं पहुंच पाती, ये कहां पर जाके रुक जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन है तो ये बॉल यहीं तक जाएगी। ये बात समझ आई? ओके, तो ये इन्फ्रेंस, इससे इस गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से क्या चीज गैलीलियो ने फाइंड किया, तो गैलीलियो ने ऑब्जर्वेशंस क्या थे मैं यहां लिख देता हूं। व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ गैलीलियो। आपको एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा, सो वी विल स्टडी अबाउट द ऑब्जर्वेशंस बाय गैलीलियो। Observations of Galileo's experiment or activity. So what he observed was that number one, the ball or marble reached to the same height from where it was released in the absence of any frictional force. Number second observation, when the
inclination was decreased, the marble traveled to greater distance unless it reached to same height. Okay, these two observations. Observation number third. So what was the third observation? Okay, so I'll write it here. Third observation, which was the base actually, that when theta become 0, means what? Angle of inclination is 0, then the marble traveled to infinite distance. थीटा 0 का मतलब क्या है? अब थीटा जो है, अब उसको चढ़ना नहीं पड़ रहा. थीटा कितना है? प्लेन है. तो जब तक चलता रहेगा जब तक कि इसकी हाइट कितनी नहीं हो जाए, h तक. अब क्योंकि ये थीटा 0 है तो हाइट h कभी भी बन पाएगी क्या? नहीं बन पाएगी. सो इट ट्रेवल्ड अप टू द इनफाइनाइट डिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस. अंडरस्टूड? तो बच्चों, इन 3 ऑब्जर्वेशन से न्यूटन ने क्या फाइंड किया? न्यूटन फाउंड आउट दैट अ बॉडी इज हैविंग सर्टेन प्रॉपर्टी विद इटसेल्फ. That is the inherent property of each and every body present in the universe. What he told was that each body is having an inherent property that resists the state of its rest, and that resists any change in the state of its rest or in the state of its motion until and unless it is acted upon by some external अनबैलेंस्ड फोर्स. इसको समझे हम. ये एक डस्टर है, ये रेस्ट पर है. अभी ये रेस्ट पे कब तक रहेगा? ये रेस्ट पे तब तक रहेगा जब तक कि बाहर से अनबैलेंस्ड फोर्स इस पे ना लगे. क्योंकि बैलेंस रहेगा तो भी ये सेम पोजीशन पे रहता है, इसलिए अनबैलेंस्ड फोर्स का लगना जरूरी है. ये अनबैलेंस्ड फोर्स ही इसको मूव कर पाएगा. ये बात समझ आई? दूसरी बात, अगर ये मूव कर रहा है तो कोई अनबैलेंस फोर्स लगेगा, वही इसको रोक पाएगा. तो न्यूटन ने क्या बोला? हर एक इंडिविजुअल बॉडी की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है. ये प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होती है एंड इट अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट. इसमें या तो ये रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि इसके ऊपर कोई बाहर से अनबैलेंस फोर्स ना लगे, या ये अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कि इस पे अनबैलेंस फोर्स ना लगे. यही कारण था कि व्हेन थीटा वाज इक्वल टू 0 देन द मार्बल विल ट्रेवल अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शनल फोर्स. ये थर्ड वाला जो पॉइंट है इसको एक्सप्लेन किया गया. तो इस particular property को, this inherent property was named as inertia. So what is inertia? To understand it in a better way, let us see these 2 videos. Okay, so after seeing these 2 videos, what we have seen?
in the first video we saw that the coin which was placed inside the coin which was placed on the piece of cardboard, when you are flicking this cardboard, जैसे आपने इसको फ्लिक किया था तो कॉइन की प्रॉपर्टी क्या थी, कॉइन किस पे था, कॉइन रेस्ट पर था। जैसे ही कॉइन रेस्ट पर रहने के लिए ये नीचे से, तो ये क्या हुआ, ये जो कार्डबोर्ड है इसको फ्लिक कर गया तो ये तो चला गया, पर ये जो कॉइन है ये रेस्ट पर रहना चाहता है तो वो क्या होगा, ग्लास के अंदर चला जाता है। ये हुआ आपका एक्टिविटी नंबर 1। बिकॉज द कॉइन, उसकी जो प्रॉपर्टी है ऑफ इनर्शिया, दैट विल फोर्स इट टू रिमेन एट इट्स इनिशियल पोजिशन, बिकॉज इस पे कोई बाहर से अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा। दूसरा आपने एक्टिविटी जो देखा था, एक टेबल है, टेबल के ऊपर आपने देखा था टॉय कार्स पड़े हैं। तो ये जब टेबल को जो मूव कर सकती है, इसको जब मैं मूव कर रहा था तो मूव करने के बाद जब सडनली इट वाज स्टॉप्ड, तो वो जो टॉय कार थी इट वांटेड टू बी इन मोशन, क्योंकि वो पहले क्या थी, वो भी इस टेबल के साथ में ही चल रही थी। ये टेबल जैसे ऐसे चल रही है, टॉय कार भी इसके ऊपर रखी हुई है, वो भी चल रही है। पर ये टेबल, जैसे ये टेबल रुकी तो ये जो कार है ये अब रुकना नहीं चाहती, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। सो इट विल मूव टू अ डिस्टेंस up until it is acted upon by some frictional force and that will stop it. यही कारण है बच्चों कि जब आप बस के अंदर देखते हो, आप बैठे होते हो और बस सडनली ब्रेक लगाती है तो क्या होता है, आपके पांव तो बस के सरफेस पर है, पर आपकी जो अपर बॉडी है ये अपर बॉडी फ्री है। अब ये अपर बॉडी बस के साथ पहले चल रही थी, आप बस में बैठे हुए हो तो बस के साथ साथ में आप भी चल रहे हो। तो जैसे ही बस सडनली ब्रेक लगाती है, आपके पांव, तो जो पांव है, लेग्स, वो किसके कांटेक्ट में है, वो कांटेक्ट में है विद बस, तो दे विल ट्राई टू स्टॉप, बट द अपर बॉडी इट इज नॉट इन कांटेक्ट। तो ये क्या करती है, आगे की तरफ, तो आपको ऐसा लगता है कि आप आगे की तरफ धक्का लगा। सिमिलरली अचानक से कोई गाड़ी स्टार्ट होती है तो आपको क्या, एकदम से पीछे की तरफ आप, यू आर पुश्ड ऑन इन द बैक साइड। So this is because your body want to be in the state of rest when the bus is suddenly starting, and when the bus is suddenly stopping, at that time your body want to be in motion. So, यही कारण है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक पेड़ है उस पे कुछ सूखी हुई पत्तियां हैं, जब आप उसकी डाली को हिलाते हैं तो वो पत्तियां गिर के नीचे आ जाती हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण भी यही है, बिकॉज वो जो ड्राई लीव्स हैं उनका स्टेट था रेस्ट। जैसे ही आपने उसको शेक किया तो वो जो रेस्ट पे थी वो अपनी जगह पे रहने के लिए वो उससे अलग हो जाती है और नीचे गिरने लग जाती है, बिकॉज ऑफ देयर इज ए ग्रेविटी। जैसा कि कॉइन एक ग्लास के अंदर गिरा था। यही कारण है कि अगर मैं डस्टिंग करता हूं तो मैं जब डस्टिंग में डस्टर को इस तरीके से शेक करता हूं, जब इस तरीके से मैं दीवार पे मारता हूं तो इसके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट पे ही होते हैं, पर मैंने इसको वाइब्रेट किया तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स है, क्योंकि वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं, दे विल फेल डाउन। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच वाज गिवन एज द नेम ऑफ इनर्शिया। सो वी शुड राइट व्हाट डू मीन बाय इनर्शिया। Based upon this property of inertia, Newton came up with his first law, which is also known as law of inertia. तो इसी inertia वाली प्रॉपर्टी के बेस पर ही न्यूटन ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ दिया था। So first we should write inertia. What is inertia? Inertia, it is the inherent property of any body to remain in the state of rest or motion unless an external
unbalanced force acts on it. So this is the property known as inertia. अच्छा बच्चों, इनर्शिया के साथ में ही एक वर्ड आता है कि इनर्शिया तो एक आपने बता दिया कि इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी. अब इनर्शिया को मुझे कैलकुलेट करना है, क्वांटिफाई करना है. तो क्या आया? तो इसको समझने के लिए आपसे एक सवाल पूछता हूं. एक ट्रक खड़ा है, ठीक है, रोड पर एक बहुत बड़ा ट्रक खड़ा है. अब मैं आपको बोलूं कि उसको पुश करिए और उस पर कुछ फोर्स लगाइए उसको मूव करने के लिए, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. पर वहीं अगर आपके पास में एक छोटी सी बाइक होती, तो अब मैं आपको बोलता कि इसको पुश करो, तो आप आसानी से उसको पुश कर सकते हो, या साइकिल हो तो और आसानी से कर पाओगे. तो हम ये देखते हैं कि ये जो इनर्शिया वाली जो प्रॉपर्टी है, जो एक बॉडी को उसके स्टेट में रहने के लिए अलाउ करती है, ये जो इनर्शिया प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करती है कि बॉडी का मास कितना है. यानी जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उस बॉडी की इनर्शिया भी हाई होगा. तो हैवी बॉडी होगी उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया होगा, उतना ही ज्यादा वो रेजिस्ट करती है अपने स्टेट को छोड़ने से. तो इसीलिए मास is what, how you will define mass? Mass is something which is present inside this. Mass is the matter which is present inside this body. So this mass is acting as a measure to determine the inertia acting on a body. So mass, it measures the inertia, amount of inertia acting on a body. That means what? That means that if the mass is more, then the inertia will also be more. If the mass is less, then the inertia will also be less. So it depends upon the mass. So mass is something which is used in order to measure the inertia. Do you understood how you will be able to find, if I'll ask you to find the inertia acting on a body? That means what? You have to determine the mass of the body, because mass is something which gives us the idea how to measure the inertia of a body. Now we have understood what do we mean by inertia, what do we mean by mass. So now we are in the position where, like Newton, we can state the Newton's first law of motion. So please write what was Newton's first law of motion, which is also known as law of inertia. Okay. So Newton's first law of motion. This is also known as law of inertia. So what do we mean by Newton's first law of motion? We mean that a body remains in the state of rest or uniform motion unless it is acted upon by. A body remains in the state of rest or uniform motion unless it is acted upon by an external unbalanced. ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, अनबैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस्ड
पोजीशन में चेंज नहीं लेके आता। अगर बॉडी की स्टेट में अगर कोई चेंज लेके आएगा तो क्या लेके आएगा? अनबैलेंस फोर्स लेके आएगा। और कौन सा? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो ये याद रखना है, unless it is acted upon by an external unbalanced force. So this became the Newton's first law of motion. तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। आज का लेक्चर इसके साथ हम यहीं पर खत्म करते हैं और अगली क्लास के लिए न्यूटन सेकंड लॉ को समझने के लिए जल्द ही हम वापस आएंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय।